Hello everyone. We are discussing about the animal kingdom. As we all know, it is a very vast kingdom, right? Animals कितने सारे तरह के हैं, okay? तो हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, है ना? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम्स इनटू द डिफरेंट फाइलम्स, ठीक है? जो फर्स्ट था, ओके, फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट बेसिस वाज द सिमेट्री। ओके, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट द सिमेट्री। सिमेट्रीज कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स, राइट? रेडियल, एसिमेट्रिकल एंड bilateral, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस एंड इफ it could divide the organism into two equal halves. इस बेसिस पे क्या किए गए थे? तीन सिमेट्रीज बनाई गई थी, दैट इज द रेडियल सिमेट्री, ओके, the bilateral symmetry and the organisms which are asymmetrical, ठीक है? If the plane passing through the central axis, if any plane passing through the central axis can divide the organism into two parts, okay, then they are known as the radially symmetrical animals या organisms, right? And if only one plane, that is the vertical plane passing through the central axis, can only divide the organism into two equal halves, then the organism is said to exhibit or said to have a bilateral symmetry, right? And the third one is the asymmetrical. That means no plane passing through the central axis or the central point can divide the organism into two equal parts, right? So this is basically about the symmetry. Another basis of the classification was that how what is the organization of the organism, right? तो organization level पे हमने discuss किया था कि it could be of cellular level, it could be of tissue level, it could be of organ or organ system level, है ना? If the organism is arranged into loose cellular aggregates, right, then it is said to have the cellular organization, ठीक है? Then it is said to have the cellular organization, okay? Next is the tissue level organization. Now in tissue level, if cells, many cells come together, okay, or are grouped together to function a similar function or to exhibit a similar function, then it is called as tissue, ठीक है? और ऐसा अगर organism है, then it is known as tissue level of organization, ठीक है? If the group of tissues come together to perform a single function, then it is said to be an organ, ठीक है? जिसमें ये organization हो उसको हम क्या कह रहे हैं? Organ level of the organization, right? Or when some organs come together to perform a similar function, then it is said to be as the organ system. जिसमें इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मोर बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है? ठीक है? अब हम पढ़ेंगे आगे मोर बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है? Now this is another basis of the classification. This is the third point, okay, that the organisms can be divided on the basis of the number of germ layers present in them, ठीक है? The organisms can be divided on the basis of the number of germ layer present in them, ठीक है? तो germ layers कितनी present हो सकती है? Basically we have 3 germ layers, ठीक है? We have 3 germ layers, okay? The outer one is the ectoderm,
middle one is the mesoderm and the inner one is the endoderm. ठीक है, basically there are 3 germ layers. Okay, outer one is the ectoderm, middle one is the middle one is the mesoderm and the innermost is the endoderm. ठीक है, these are the dermal layer or these are the germinal layers. ठीक है, जहाँ से हमारी चीज़ें, मैं कहूँ हमारे organs या structures क्या कहते हैं, originate होते हैं या बनते हैं. ठीक है, जर्म सेल्स अगर अपन ने बहुत जगह, हम 12th में बहुत जगह पढ़ेंगे जर्म सेल्स. ठीक है, तो जर्म सेल्स बेसिकली होते ही क्या है कि जो आगे जाके क्या करता है, डिवाइड करके कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली ये क्या है, ये आगे बढ़ के, ये आगे डेवलप होके क्या करती हैं, हमारे जो बॉडी है उसके ऑर्गन्स, उसके स्ट्रक्चर्स को आगे बनाती है. ठीक है, now these are layers of embryo from which all the body organs are formed. ठीक है, ये क्या होती है, ये layers कहाँ प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो के अंदर. ठीक है, और इसी से क्या बनते हैं, बाकी सारे ऑर्गन्स बनते हैं. इसी से क्या बनते हैं, बाकी सारे ऑर्गन्स बनते हैं हमारी बॉडी के. ठीक है, now based on the number of the germ layers. ठीक है, based on the number of the germ layers, animals are of 2 types. ठीक है, अब based on the number of the germ layers, the animals are of 2 types. ठीक है, one is, हमेशा वर्ड से समझने की कोशिश करो, राइट. फर्स्ट वन इज द डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि डिप्लो मतलब 2, डिप्लो मतलब 2. ठीक है, डिप्लो मीन्स 2 और ट्रिप्लो मीन्स 3. ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, तो उनको हम किस में क्लासिफाई कर देंगे या कैसे क्लासिफाई कर देंगे, एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ओके, एंड जो ऑर्गेनिजम्स 3 लेयर में, जिनके पास 3 जर्म लेयर्स हैं, ठीक है, जिनमें तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोल देंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ठीक है, अब जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, राइट, the animals or the organisms which are classified as the diploblastic animals does not have the mesoderm. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होता है, mesoderm जो लेयर है, ठीक है, mesoderm is absent. ठीक है, इन एनिमल्स में क्या होती है, जो मीजोडर्म लेयर होती है दैट इज एब्सेंट. ठीक है, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है उसमें तीनों ही लेयर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, दैट इज द एक्टोडर्म, द मीजोडर्म एज वेल एज द एंडोडर्म. ठीक है, तीनों ही लेयर्स क्या होगी, प्रेजेंट होगी. यू कैन सी द दिस डायग्राम, राइट. ये क्या है, दिस इज द एक्टोडर्म, द इनर मोस्ट इज द एंडोडर्म एंड दिस मिडल वन विद द पिंक कलर इज द mesoderm. ओके, अब इसमें हम देखेंगे पूरा अच्छे से. फर्स्ट, ओके, 2 germ layers, outer ectoderm and the inner endoderm are present. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, सिर्फ ectoderm and endoderms are present, राइट. इसमें सिर्फ 2 ही germ layers क्या होगी, प्रेजेंट होगी. दैट्स वाई वी कॉल देम एज द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ठीक है, नाउ इन बिटवीन दीज लेयर्स, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, राइट, ये वाली लेयर पूरी एक्टोडर्म है और इनसाइड वाली लेयर बिल्कुल एंडोडर्म है. लेकिन यहाँ पे भी वी कैन सी दैट देयर इज वन मिडल लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन देम, राइट. वी कैन सी दैट देयर इज अ मिडल लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन देम. Okay, so now in between these layer, an undifferentiated jelly-like layer called mesoglia is present. ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, एक undifferentiated cell. Undifferentiated cell means that, जैसे हम नहीं बोलते
जब बच्चा जस्ट पैदा होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जस्ट पैदा होते ही जो बच्चा होता है ना, उसको नवजात बोलते हैं, इफ यू गाइस नो दैट, राइट। तो मतलब वो बेसिकली किसी, कहते हैं ना, किसी धर्म वरम का और ये इन सब से थोड़ा कोसों दूर होता है। ही डजंट नो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आगे बढ़ के डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। या आई कुड से कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं क्या है, अनडिफरेंशिएटेड एनिमल्स, सॉरी ऑर्गेनिजम्स है, टिल 10th मान लो, ठीक है, हम टिल 10th क्या है, अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स है, हमको नहीं पता हमको आगे क्या करना है, हम बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि ये भी बस क्या है, बढ़ रहे हैं, ओके, नंबर में बढ़ रहे हैं, लेकिन दे डोंट नो कि उनको आगे कुछ जो स्पेसिफिक काम परफॉर्म करना है वो कौन सा है। मतलब हम सब 10th तक पढ़ते हैं, राइट, एटलीस्ट पढ़ना तो चाहिए ही, राइट। कुछ लोगों की जो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाते, वॉट एवर, बट जो भी है, जैसे हम अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं 10th तक हम सब एक ही स्टैंडर्ड में सब बराबर से पढ़ते हैं, राइट। 11th से जाके हमारे स्ट्रीम्स वगैरह अलग हो जाते हैं और उसके बाद आगे जाके हमारे फील्ड स्पेसिफाई हो जाते हैं कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक कुछ आर्टिस्ट है, एक ये है, एक वो है, राइट। तो सिमिलरली जब तक समझ लो कि ये जो मीजोग्लिया है इसका अभी स्कूल फेज चल रहा है, राइट, ये क्या है, बच्ची, अभी इसको नहीं पता कि आगे क्या बनना है, ठीक है। लेकिन जब जैसे बच्चे अपना फील्ड चूज कर लेते हैं, सपोज मैं डॉक्टर बन गई, ठीक है, तो मैं अब डिफरेंशिएटेड हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे पता है मेरा स्पेसिफिक काम क्या है, दैट आई एम अ डॉक्टर, राइट। लेकिन यहाँ पे जब अनडिफरेंशिएटेड है तो उसको नहीं पता कि उसका एज सच काम क्या है। डिफरेंशिएटेड सेल्स हम कब बोलते हैं, व्हेन द सेल इज डिफरेंशिएटेड और मैच्योर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क sorry, when the cell is matured or when the cell is performing a specific work, it is said to be differentiated, ठीक है। जैसे इंसान बड़े होके अपनी फील्ड चूज कर लेते हैं, वो कोई ना कोई एक टैग लेके घूमता है कि भाई ये तो ये है, ठीक है, ये कार ड्राइवर है, ये कैब ड्राइवर है, ये है, तो सबको अपना काम पता है, अपना स्पेसिफिक काम पता है, वो मैच्योर हो गए हैं और अब उनको पता है कि उनको कौन सा स्पेसिफिक काम करना है। सिमिलरली अभी अनडिफरेंशिएटेड है, स्कूल में है, इनको डिफरेंशिएटेड कब बोलेंगे, जब इनको अपना फील्ड पता चल जाएगा कि मुझे क्या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, मुझे रेस्पिरेशन का सेल बनना है, या और मुझे रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है, या मुझे किडनी में किसी या मुझे एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई सेल बनना है और मुझे उसमें हेल्प करना है। ही डजंट नो दैट, राइट। अभी ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, ठीक है। तो इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म a middle layer is present, a middle undifferentiated layer is present, which is known as the mesoglia, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, निडेरिया एंड टीनोफोरा, ठीक है, फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा, ओके। Now comes the triploblastic animals, simple, in which all the 3 germ layers are present, ठीक है। तो 3 germ layers, that is the outer ectoderm, the middle mesoderm and the inner endoderm are present, ठीक है। जिन भी ऑर्गेनिजम्स में ये तीनों लेयर प्रेजेंट होगी, दैट इज द एक्टो, एंडो एंड द मीजोडर्म, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। और ऐसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, ये अपन सीक्वेंस आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एक्चुअली याद रख लो, इट वुड बी मोर इजियर टू रिमेंबर, है ना, जो कम चीज होती है हम एक्सेप्शंस को ज्यादा याद रख सकते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिजम्स है, तो वी कैन रिमेंबर देम, राइट, निडेरिया एंड टीनोफोरा, ठीक है। उसके अलावा जो भी हायर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सब में क्या है, 3 लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें कितनी है, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं, ओके। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, दैट दिस मीजोग्लिया लेयर इज द नॉन लिविंग लेयर, ठीक है। दिस मीजोग्लिया लेयर इज द नॉन लिविंग लेयर, ओके।
Now, the next basis of the classification is the coelom. ठीक है, the next basis of the classification is the presence or absence of the coelom. ठीक है, coelom is basically what? It is a body cavity. ठीक है, ये क्या होती है? हमारी बॉडी की कैविटी होती है. अ कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द, सपोज ये हमारी बॉडी है, ओके मतलब हमारी तो नहीं, किसी एक लोअर ऑर्गेनिज्म की बॉडी समझ लो, वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा. सपोज ये किसी लोअर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, ये उसकी बॉडी की बाउंड्रीज है. दिस इज द बाउंड्री ऑफ द बॉडी, राइट, ओके. और अंदर उसके क्या होगा? गट होगा, ठीक है, गट होगा जहाँ से वो खाना खा रहा है या फूड इंजेक्शन या जो भी वर्क चल रहा है, ठीक है. तो दिस इज द बॉडी का वॉल, राइट, एंड दिस इज द गट वॉल. ठीक है, ये बॉडी का वॉल है एंड दिस इज द गट वॉल. नाउ द स्पेस, ठीक है, द स्पेस, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. ठीक है, the space or the cavity that is present between this body wall and the gut wall is known as coelom. ठीक है, the space or the cavity that is present between the body wall and the gut wall is known as the coelom. ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बॉडी कैविटी बोल रहे हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और absence of this cavity, this coelom in the body of the organisms, the organisms are classified into different phyla. Okay, now it is the cavity lined by the mesoderm. ठीक है, ये अपन ने बता दिया कि it is seen between body wall and the gut wall. ठीक है, इसमें तो कोई confusion नहीं है कि भाई ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की जो कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं? coelom कहते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? coelom कहते हैं. अब ये जो coelom है, ठीक है, इट इज लाइंड बाय द mesoderm. ये अपन बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में चल रहे हैं, अभी अच्छा डायग्राम उधर देखेंगे, है ना. इट इज लाइंड बाय द mesoderm. ठीक है, इट इज लाइंड बाय द mesoderm. ठीक है, ये राउंड सेक्शन इट इज मोर अप्रोप्रिएट. ठीक है, कि ये क्या है? ये क्या है? हमारा coelom है. ठीक है, दिस इज अ coelom. ओके, दिस इज द बॉडी कैविटी एंड इट इज लाइंड बाय द mesoderm. ये वाला भी mesoderm है और ये वाला भी क्या है? mesoderm है. ठीक है, तो इट इज लाइंड बाय ऑन द बोथ साइड्स बाय द mesoderm. ठीक है, नाउ द coelom separates the muscle of the gut and the body wall. सिंपल सी बात है भाई कि जब हमारा बॉडी वॉल है, ठीक है, और गट वॉल के बीच में कोई कैविटी पड़ी हुई है तो डेफिनेटली वो उसके कंटेंट्स को तो क्या करेगी? एक दूसरे से सेपरेट करेगी ही. अगर एक रोड का रास्ता है, ये एक रोड है बीच में, तो उसके दो तरफ हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो डेफिनेटली ये रोड उन दो साइड्स को एक दूसरे से अलग कर रही है या नहीं, राइट. तो सिमिलरली ये जो बॉडी कैविटी, सॉरी, ये जो coelom है, ठीक है, इट इज सेपरेटिंग व्हाट? इट सेपरेट्स द मसल ऑफ द गट एंड द बॉडी वॉल. ये क्या कर रही है? दोनों ही मसल्स को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, गट की भी और बॉडी वॉल की भी. ठीक है, अब based on the nature of the coelom, the animals are of the 3 types. ठीक है, अब coelom के नेचर के बेसिस पे क्या है? एनिमल्स को भी हमने 3 में क्लासिफाई कर दिया या डिवाइड कर दिया है. ठीक है, फर्स्ट इज द acoelomate, सेकेंड वन इज द pseudocoelomate एंड थर्ड वन इज द coelomates. ठीक है, मतलब 3 तरह के हैं, acoelomate,
स्यूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स, ठीक है। आई होप आपको इन वर्ड से थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि किसमें क्या क्या है, ठीक है। ए सिलोमेट क्या हो सकता है, सिलोमेट क्या होगा और सूडोसिलोमेट क्या होगा। हमेशा वर्ड्स के मीनिंग्स को, टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करो। जहाँ पे ए सिलोमेट है, दैट मीन्स it does not have that thing, or I'm not just talking about the coelom, okay। जहाँ पे भी अपना a लगता है आगे, we generally assume, or we should generally assume, we should, ओके कि ए सिलोमेट है, या यहाँ पे ए सिलोम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए सिलोमेट है मतलब वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। सिलोम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिलोमेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए सिलोमेट, मतलब उसमें प्रेजेंट नहीं है। सिलोमेट का मतलब समझ आ गया कि इसमें सिलोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए सिलोमेट, मतलब इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। एंड सूडो लाइज इन बिटवीन, है भी और अपन ट्रूली नहीं कह सकते, है ना। मतलब जहां पे फॉल्स मैं कहूं कि स्यूडो जो वर्ड यूज होता है, ठीक है, वो कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे किसी चीज की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स शो ना हो रही हो, बट स्टिल वो थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स उसकी तरह शो करता हो, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ फॉल्स अपीयरेंस देता है वो सिलोम की तरह। स्यूडो सिलोमेट मतलब इट इज नॉट ट्रूली लाइक अ सिलोम, ठीक है। जैसे बॉडी कैविटी होती है वैसे ट्रूली वैसी बॉडी कैविटी नहीं है, हाफ हाफ थोड़ा मैच कर रही है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, सूडो सिलोमेट, ठीक है। Now, first is the acylomate, ठीक है। Acylomate means there is no coelom present, okay। Now the space between the body wall and the digestive cavity is filled with the matrix, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे पैरेन्काइमल सेल्स को बहुत जगह, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो हमारी स्पेस है, ठीक है, जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, दैट इज फिल्ड विद द मैट्रिक्स दैट इज नोन एज द पैरेन्काइमा। इसलिए यहाँ पे क्या है, कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं है। यू कैन सी दैट यहाँ पे भी कोई भी जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। इट इज फिल्ड विद व्हाट, पैरेन्काइमा, ठीक है। ये जनरली टीचर्स, नॉट एग्जाम में तो नहीं, बट डेफिनेटली टीचर्स ही क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं कभी वाइवा में कि भाई एसिलोमेट क्यों कहा जाता है और कैविटी नहीं है तो क्यों नहीं है। बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ मैट्रिक्स नोन एज द पैरेन्काइमा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, पोरिफेरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पोरिफेरा एंड पोरिफेरा टू प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा डेफिनेटली इन एग्जाम्पल्स को रिमेंबर करने में कि भाई कौन सा किस में था ग्रुप में, बट ठीक है, धीरे धीरे जब आप इसको ज्यादा बार पढ़ेंगे यू विल लर्न, है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सेकेंड वन इज द स्यूडोसिलोमेट, दैट मीन्स द फॉल्स सिलोम, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट क्यों बोलता है, बिकॉज इट इज अ फॉल्स सिलोम, ठीक है। नाउ here the body cavity is not lined by mesoderm, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है। एसिलोमेट में तो क्या था, बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो है, ठीक है, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है। लेकिन हमने सिलोम कब कहा था उस बॉडी कैविटी को, जब वो दोनों ही तरफ से क्या थी, मेसोडर्म से लाइंड थी, ठीक है। जब वो दोनों ही तरफ से मेसोडर्म से लाइंड थी, तब हमने उसको कहा था कि भाई चलो आपको नाम दे देते सिलोम। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है इसमें मेसोडर्म से लाइंड ये नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, ओके। मेसोडर्म इज स्कैटर्ड पाउचेस, मेसोडर्म इसके अंदर ये वाला, दिस इज मेसोडर्म। पहले जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, उसमें जो मेसोडर्म थी वो कहाँ प्रेजेंट थी, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे। लेकिन अब मेसोडर्म उसको लाइन नहीं कर रही है, ये यहाँ पे इन पाउचेस में प्रेजेंट है, ठीक है।
इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट। कि भाई बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, थोड़ा तो इसको जस्टिफाई कर रही है सिलोम को कि भाई ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी बना रही है, ठीक है। तो ये सिलोम का एक कैरेक्टर तो शो कर रही है, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है दैट इट इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, फॉल्स सिलोम। इट इज नॉट अ ट्रू सिलोम के सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को टिक टिक किए जा रहा है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में सिलोम की प्रेजेंट है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, फॉल्स सिलोम, ठीक है। और इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, सूडो सिलोमेट, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्की हेलमिंथिस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्की हेलमिंथिस, ओके। द थर्ड वन इज द सिलोमेट, मतलब ट्रू सिलोम। इसमें जो सिलोम है इट फुलफिल्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव रेड इन द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। हेयर द सिलोम अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्म, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि यहाँ पे जो सिलोम है इट इज अराइजिंग फ्रॉम द मेसोडर्म, ठीक है। एंड दिस सिलोम इज लाइंड बाय द पेरिटोनियल लेयर एंड फिल्ड विद द सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे लेयर क्या कर रही है, इसको एक पेरिटोनियल लेयर इसको लाइन कर रही है, ठीक है। और ये किससे फिल्ड है, इसमें सिलोमिक फ्लूइड से, ठीक है। ये किससे फिल्ड है, सिलोमिक फ्लूइड से, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनालिट्स टू कॉर्डेट्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एनालिट्स टू कॉर्डेट्स, ठीक है। ये आप नोट करना चाहते हो इसमें कुछ भी तो जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट वी हैव ऑलरेडी रेड, ओके। फंक्शंस ऑफ द सिलोम, ठीक है। अब इस सिलोम के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इट accommodates the visceral organs. Visceral organs are basically the organs that cannot be controlled voluntarily, ठीक है, which cannot be controlled voluntarily by the CNS are basically the visceral organs, ठीक है। तो it accommodates the visceral organs, okay. Next is coelomic fluid reduces the friction between the visceral organs, ठीक है। जो भी visceral organs अब सिलोम के अंदर इस बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको ये क्या करता है, सिलोमिक फ्लूइड उनके बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट। अगर कोई हार्ड चीज होगी या ऐसे कोई सॉलिड चीज होगी तो वो क्या करेगी, ऐसे फट से कुछ लगेगा तो टूट जाएगी, लेकिन वही उसमें कहीं आप समझ लो पानी से भरा हुआ एक गद्दा है, ठीक है, तो अगर आप उस पर मुक्का मारोगे, ठीक है, तो वो आपको वापस पंच बैक करेगा, ठीक है। तो इट एब्जॉर्ब्स दैट, it can absorb that shock, right. So it is kind of, it acts as a shock absorber as well, ठीक है। तो these are three basic functions of the silomes, ठीक है। These are three basic functions of the silome. Now another basis of the classification is the metamerism. Metamerism is basically the repetition of the structures, ठीक है। by metamerism we basically means that the repetition of the structure, ठीक है। मर्स का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, मर्स मीन्स यूनिट, ठीक है, मर्स मीन्स यूनिट,
या सेगमेंट, ठीक है। और मेटामेरिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, रिपीटेड यूनिट्स, ठीक है। मेटामेरिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, रिपीटेड यूनिट्स, ठीक है। नाउ इट इज द फिनोमिनन इन विच द बॉडी और organs is externally or internally divided into repeated segments, ठीक है। मेटामर्स, मर मीन्स यूनिट एंड मेटामर्स मीन्स रिपीटेड यूनिट्स, ठीक है। तो एक्सटर्नली और इंटरनली जिन ऑर्गेनिजम्स में ऐसा हो कि बार बार जो एक ही स्ट्रक्चर है या एक ही सेगमेंट है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये मेटामेरिज्म को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अर्थवॉर्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। वी ऑल हैव सीन अर्थवॉर्म समवेयर, है ना, कहीं ना कहीं हमने गार्डन्स में, कहीं पार्क्स में अर्थवॉर्म सबने देखा है। तो वी कैन सी, अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स भी ठीक से दिख रहा है या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू कैन सी द सेगमेंट्स, यू कैन सी द लाइंस के ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड तो है ना, लेकिन एक ही सेगमेंट क्या है, बार 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 रिपीट होके उसका क्या बन जाता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम सेगमेंट को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। इस फिनोमिनन को या इस तरह को अपन क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, दैट इज रिपीटेशन ऑफ द डिविजन्स और द सेगमेंट्स और द यूनिट्स, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी और दिस फिनोमिनन इज शोन बाय द एनालिड्स एंड द आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। एनालिड्स एंड द आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स में आप समझ सकते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है। यू guys have seen the earthworms, okay, and arthropods are basically the insects. So you can also imagine some insects also कि अगर आपने कहीं देखे हो, ठीक है, जो क्या शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या शो कर रहे हैं कि भाई रिपीटेड सेगमेंट्स उनमें प्रेजेंट हो। इट इज नॉट वेरी हार्ड टू इमेजिन व्हेन वी हैव टेकन दिस वेरी सिंपल एग्जांपल, वी ऑल कैन सी दैट दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स, और इसकी जो पूरी बॉडी है वो इसी से तो बनी है, राइट। तो दिस इज बेसिकली अबाउट द मेटामेरिज्म, ठीक है। द नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, ओके। नाउ नोटोकॉर्ड में, नोटोकॉर्ड क्या होती है, इट इज बेसिकली अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज नथिंग बट बेसिकली अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड, ठीक है। ये क्या होती है, मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जर्मिनल लेयर्स आर सो इम्पॉर्टेंट, राइट, कि जर्मिनल लेयर्स से एक्चुअली क्या हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिनेट या डेवलप होते हैं, राइट। सो इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड, ठीक है, formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals, ठीक है। तो ये जो mesodermally derived supporting rod, it is dorsally present, means at the back side, ठीक है। तो ये dorsally क्या होती है, present होती है कुछ animals के as a supporting स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हम में स्पाइन होती है, ओके, वहां पे क्या हो रही है, ये नोटोकॉर्ड होती है विच एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर टू सम organisms or some animals during the embryonic development, ठीक है। Now the animals with notochords are called as chordates, ठीक है। जिन animals में भी notochord present है, ओके, उनको हम क्या बोल रहे हैं, chordates बोल रहे हैं। एंड जिन organisms में notochord present नहीं है, ओके, the notochord is absent, then they are known as the non-chordates, ठीक है, then they are known as the non-chordates. You can see here, right, कि this is a notochord, this pink structure is the notochord, ठीक है, and it is present at the dorsal side, ठीक है, it is present at the dorsal side during the embryonic development, ठीक है। ओके, ठीक है। तो दैट वाज बेसिकली द नोटोकॉर्ड एंड दिस इज द basis of, these are the basis of the
क्लासिफिकेशन, ठीक है. कितने बेसिस थे? 6. ओके. द फर्स्ट वन वॉज द सिमेट्री, ठीक है. सेकेंड वन वॉज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. थर्ड वन वॉज द नंबर ऑफ द जर्मिनल लेयर, जिसमें क्या था? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है. फोर्थ आ गया हमारा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सिलोम, है ना. और फिफ्थ आ जाएगा हमारा मेटामेरिज्म एंड सिक्स्थ आ जाएगा हमारा नोटोकॉर्ड्स, ठीक है. तो देयर आर बेसिकली सिक्स बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या हुआ है, ये सारे के सारे फाइलम्स डिवाइड किए गए हैं, ठीक है. इन शॉर्ट एक बार इन सब पे लेट्स टेक अ क्विक लुक कि किसमें कैसी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है. डेफिनेटली आपको ये रिमेंबर करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी. 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी इन चीज़ों की, ये आपको रिमाइंड होने लगेगी, ठीक है. चलो, नाउ द फर्स्ट फाइलम इज द, देयर आर बेसिकली फाइलम्स, ओके. देयर आर बेसिकली द फाइलम्स, ठीक है. और उसमें क्या है, हम सबसे पहला जो सबसे प्राइमरी फाइलम है, ठीक है, सबसे जो प्राइमरी फाइलम है वो कौन सा हो जाएगा? पोरिफेरा, ठीक है. नंबर 1 ऑफ द 11 फाइलम्स, दिस इज द फर्स्ट फाइलम, द पोरिफेरा, ओके. अब इनको हमने क्या किया है, अगेन जो हमने सिमेट्री जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उनका ही ये क्या है, एक क्विक रिकैप या रिव्यू रिकैप है, ठीक है. फर्स्ट इज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द जर्म लेयर्स, द सिमेट्री, द सिलोम, ठीक है. मेटामेरिज्म हमने देख लिया, एनालिट्स और आर्थ्रोपोड्स शो करते हैं, ठीक है. और जो नेक्स्ट नोटोकॉर्ड है वो भी क्या होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है. और ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हम उसको पढ़े, ओके. नाउ द फर्स्ट वन, पोरिफेरा हैव अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. जर्म लेयर आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इसमें कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती. एंड इट एग्जिबिट्स अ एसिमेट्रिक और द रेडियल सिमेट्री, ठीक है. इट एग्जिबिट्स एसिमेट्रिकल और द रेडियल सिमेट्री, दोनों हो सकती है, एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सिलोम्स. तो दीज आर एसिलोमेट, मतलब इनमें क्या होता है, सिलोम एब्सेंट होता है, इनमें क्या होता है, सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज द निडेरिया, ठीक है. नेक्स्ट इज द निडेरिया एंड द टीनोफोरा, ठीक है. सेकंड एंड द थर्ड, पोरिफेरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा, ओके. अब निडेरिया और टीनोफोरा का दोनों के दोनों क्या है, सेम है. बोथ ऑफ देम एग्जिबिट्स द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. बोथ ऑफ देम एग्जिबिट्स द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द जर्म लेयर्स आर 2, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द डिप्लोब्लास्टिक organisms, okay. The symmetry that is shown is the radial symmetry and the coelom is absent in both of them, ठीक है. तो जो भी निडेरिया और टीनोफोरा है उनमें क्या है, सारे ही कैरेक्टर्स जो हैं, जो बेसिस है क्लासिफिकेशन के, वो क्या है, सबके सब सेम है, ठीक है. फोर्थ वन इज द प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है. फोर्थ वन इज द प्लैटीहेलमिन्थेस. नाउ इन देम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम. यहाँ पे आते आते हमको ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलने लगेंगे, ठीक है. और यहाँ से जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो भी क्या हो गई है, 3 हो गई है. तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पोरिफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा में क्या होती है, पोरिफेरा में तो कोई होती ही नहीं है जर्म लेयर प्रेजेंट, ठीक है. और निडेरिया और टीनोफोरा में क्या होती है, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है. और उनके बाद जो भी फाइलम्स है उन सब में क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है. नाउ they exhibit platyhelminthes exhibit the bilateral symmetry and they also does not have a coelom, they are also acoelomates, okay. The fifth phylum is the
helminthes. ठीक है, the fifth phylum is the Aschelminthes. ठीक है, the first is the organ system. Okay, the level of organization is the organ system level. के यहाँ पे क्या है, organs present होंगे. ठीक है, सॉरी, organ systems present होंगे. ठीक है, germ layers triploblastic. Okay, and the symmetry is bilateral and the coelom is pseudocoelomates. ठीक है, यहाँ पे जो लेयर कैरेक्टर्स है, जर्म लेयर्स और सिमेट्री, ये तो क्या है, सिमिलर है, लेकिन जो सिलोम है वो क्या है, अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है, तो Aschelminthes exhibit pseudocoelomate टाइप ऑफ द सिलोमिक कैविटी. ठीक है, pseudocoelomates होते हैं, इनमें क्या होता है, फॉल्स सिलोम. ओके, बाकी क्या है, बायलेटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट. ठीक है, देन आर द 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th. ठीक है, ये बाकी जो आपके फाइलम्स है, दैट इज द एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटास. ठीक है, या कॉर्डेट्स. ओके, दीज आर योर 11 फाइलम्स एंड फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेट्स ये सारे के सारे क्या करते हैं, सेम फीचर्स को शो करते हैं. दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक है, germ layers are the triploblastic or the 3 germ layers and the symmetry is the bilateral and coelom are the, मतलब these organisms are the coelomates, means they have a presence of the true coelom. ठीक है, तो ये आप देखो कि पोरीफेरा में ही क्या है, थोड़ा ज़्यादा अलग चीज़ है. ठीक है, उसके बाद निडेरिया और टीनोफोरा का थोड़ा याद करने की कोशिश करो. उसके बाद आपको पता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इट इज शोइंग एसिलोमेट. एस्कीहेल्मिन्थीज पे आते ही क्या आ जाएगा, स्यूडोसिलोमेट. और एस्कीहेल्मिन्थीज के बाद 6 to 11 जो भी फाइलम्स है वो क्या कर रहे हैं, सबके सब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं. दैट इज द ऑर्गन सिस्टम, द ट्रिप्लोब्लास्टिक, द बायलेटरल एंड द सिलोमेट्स. ठीक है, ये सब क्या है, सेम है. इसके बारे में ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है. इन चीजों को अपन नॉर्मली रिमेंबर कर सकते हैं. जब अपन इसको पढ़ेंगे 1-2 बार में ये तो याद हो जाएगा. इट इज वेरी इजी, राइट. तो दिस इज बेसिकली द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन विच दीज 11 फाइलम्स आर डिवाइडेड. ठीक है, नाउ द we will start to read or study about the individual phylums from the next class. ठीक है, this is it for the today's class. Thank you.